In the last class, we had started the discussion of free vibrations with viscous damping. So we have a vibrating mass which is moving up and down as shown in the figure. And now there is a damper and a spring. So there are two quantities that will provide resistance to motion. So we had considered a random position in which the mass was moving downward with a velocity of y dot at a displacement of y. The random position was considered from the equilibrium position. So in this case, the two forces that were acting were ky and cy dot. And based on the theory of Newton's second law and how to form a differential equation, we had obtained this equation. We were hoping that by constructing the differential equation of motion, we would directly get the expression for omega n, because in most of the investigations related with vibrations, this is the aim, to find the omega n. And if in any case the amplitude is reducing with time, then we also want to investigate what is the trend of reduction of amplitude, and that is in the case of damped vibrations. So with this aim, we obtained this differential equation of motion. But as soon as we had a look at this differential equation, we immediately knew that we are not going to get the value or the expression of omega n directly from this, because this does not match the standard differential equation of a simple harmonic motion. So the only recourse that we had was to go for the solution of this equation. Now, to solve this differential equation, we took a general solution format for this. This is what we do. Look at the type of differential equation and obtain a general solution. The general solution will always carry some unknown constant inside it. One constant or more than one constant, depending on the type of differential equation. Now for our general solution, we started out with e raised to power st, and the only obstacle in finding the solution is to find the value of this unknown constant s. Now in order to find this s, what we did was we put this value of y into this differential equation. So we have a y double dot here, so we differentiated y twice. We have a y dot here, so we differentiated y one time also, and y is also standing here. So y dot and y double dot, all three quantities are inside this differential equation. We put this y dot and y double dot inside this equation and eventually get an equation, a quadratic equation in S, which we call as the characteristic equation of the system, because this contains all the constant. In terms of constants, it contains all the parameters of the system. So basically, it is characterizing the system. Now, remember that we had started with the objective of finding this S now. So we were hoping that if somehow this constant is found, then we would have some idea of what the frequency is going to be. So we are still blindly walking in the dark, right? Still we have no guarantee कि भाई अपन कहाँ पहुंचेंगे, बस कर रहे हैं. जनरली यही कर सकते हैं अपन. डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका एक ही काम किया जा सकता है, सॉल्व करो. सॉल्व करके देखो फिर भाई कि उसका क्या क्या फॉर्मेट है. फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले, तो ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाया. सो यू इवेंचुअली वर सक्सेसफुल इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ योर s. लेकिन s की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के कारण s के दो रूट निकल रहे थे. ये तो निकलना ही था, लेकिन ये अपन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. हम जब स्टार्ट कर रहे थे जनरल सॉल्यूशन के साथ में, तो हम ये मान के चल रहे थे कि s का बस एक वैल्यू आएगा. अब दो वैल्यू आ गए तो क्या करें. अब ये कंफ्यूजन है कि मैं अब इस s की जगह s1 यूज करूं या s2 यूज करूं, या कहीं ऐसा तो नहीं होता कि ये दोनों कुछ प्रोपोर्शन में मिलकर के s बन जाते हैं.
सो हु नोज व्हाट द रियलिटी इज। तो ऐसे सिचुएशंस में मैथमेटिक्स इस तरह की डिलेमा को, इस तरह की मतलब जो कंफ्यूजन है, इसको डील करने के लिए क्या करता है, इक्वेशन को ऐसे कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये बोलता है कि भाई ना तो S1 पूरा है ना S2 पूरा है, एक कांस्टेंट ले लो, C1 C2 दो कांस्टेंट ले लो, वो वेटेज की तरह काम करेंगे, एंड देन यूज बोथ S1 एंड S2। तो इन दोनों को यूज में लेने के लिए अपन ने जो इनिशियल सॉल्यूशन कंसिडर किया था, इसको अपन वापस से बनाएंगे कि भाई जनरल सॉल्यूशन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि S की दो वैल्यूज है, तो जनरल सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए। अब जाकर के अपन ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया। लेकिन ये स्टेटमेंट क्यों चेंज किया, जब बाद में पता लगा कि एस की दो वैल्यूज आ रही है। सो एनीवे, ये जरूरी था, ये अपन ने कर लिया। ठीक है। तो y इज नाउ रिप्रेजेंटेड एज c1 प्लस ई रेज टू पावर s1t। तो यहां पर ये पूरी की पूरी चीज e की पावर और t से मल्टीप्लाई होके यहां आ जाएगी, प्लस c2 into e raised to power s2t। s2 is this one, and this whole thing will come here as the power of e, and it will be multiplied with t। ठीक है। तो अब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस फॉर्मेट में निकाल लिया। s पता नहीं था, s अभी पता लग गया, लेकिन s की दो वैल्यूज होने के कारण s1 s2 तो पता लग गए, लेकिन अब दो नए कांस्टेंट आ गए c1 c2। अब इनका क्या करूं, अब ये नहीं पता। तो अभी भी अपना सॉल्यूशन अपने हाथ से छूट रहा है, somehow it is not fully inside our grasp। Constants C1 and C2 are found using initial conditions of any given specific problem। ठीक है। तो अब इस चीज का मतलब C1 और C2 को कैसे निकाला जाता है इनिशियल कंडीशन से, ये अभी अपन आगे थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन अब यहां पर अपन एक ब्रेक ले रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू न्यू कॉन्स्टेंट्स। यहां से आपके पूरे वाइब्रेशन इंजीनियरिंग का गेम चेंज होने वाला है। यहां पर आपको दो नए कांस्टेंट्स ऐसे सिखाए जाएंगे जो कि आगे जाकर मतलब आपका टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर वाइब्रेशन इंजीनियरिंग करिकुलम, ये दोनों कांस्टेंट्स कंटिन्यूअसली आपके यूसेज में आएंगे। तो अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है। अपन अभी क्या कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन को यहां पर छोड़ दिया अभी अपन ने, और अब अपन इस सॉल्यूशन के अंदर दो कांस्टेंट्स नए इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उनको यूज करके आगे चलेंगे। तो पहले ये समझना चाहते हैं कि ये दो कांस्टेंट्स कैसे हैं। अब देखो, अपन पहले यहां से स्टार्ट करते हैं कि S1 S2 क्या है। ठीक है। S1 S2 अपने जो दो कांस्टेंट्स निकल के आए थे वो C M और K के टर्म्स में ऐसा एक एक्सप्रेशन है। S1 में यहां पर प्लस बैठा है और S2 में यहां माइनस बैठा है, बाकी सब कुछ सेम है। अब एक C की ऐसी वैल्यू हो क्रिटिकल, जिसको कि मैं C क्रिटिकल कह सकूं। सो दिस इज C सफिक्स C इज द क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि C की वैल्यू जीरो से लेकर के ऊपर को कितनी भी हो सकती है। ठीक है। सिस्टम की डैम्पिंग कांस्टेंट जो है, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसी क्रिटिकल वैल्यू अगर C की हो जिसके बराबर अगर C आ जाए, तो ये जो पूरा जो रेडिकल पार्ट है ये जीरो हो जाए। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये रेडिकल पार्ट अगर पूरा जीरो हो गया, तो मैं ये देख रहा हूं कि दोनों S1 और S2 में से ये रेडिकल पार्ट चला जाएगा और S1 और S2 एक हो जाएंगे। तो अब अगला क्वेश्चन ऑब्वियसली किसी भी आदमी के मन में ये आएगा कि ठीक है, बात तो सही है, लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हो आप। ये भी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्रिटिकल कांस्टेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, ये बस अभी कुछ ही मिनटों में आपके सामने क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि ये जो रेडिकल पार्ट है ये खत्म हो जाए। रेडिकल पार्ट का मतलब होता है जो अंडर रूट के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली आप ये करना चाहते हो कि ये अंडर रूट वाले पार्ट को एलिमिनेट करना चाहते हो अपने S1 और S2 के एक्सप्रेशन में से। तो अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, अपन ये बोल रहे हैं कि भाई C या क्रिटिकल कोएफिशिएंट एक ऐसी C की वैल्यू है
जिसको कि अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में रख दूं, इन दोनों एक्सप्रेशंस में रख दूं, तो दोनों में से ये रेडिकल पार्ट चला जाएगा। तो सीधी सी बात है कि मैं आपको इस चीज को ऐसे लिख के दिखा सकता हूं, देखिए। रेडिकल पार्ट में क्या बैठा हुआ है, C/2m होल स्क्वायर माइनस K/m। So what I'm saying is, if my C becomes equal to C critical, then C critical upon 2m, अब देखो C की जगह मैंने यहां पर C critical रख दिया, तो C critical upon 2m का होल स्क्वायर जो है ये जरूर K/m के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये इसके बराबर होगा, दिस थिंग विल बिकम इक्वल टू जीरो, और अंडर रूट ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो हम ऐसा ही चाहते थे कि ब्रिंग अ वैल्यू ऑफ C so that this radical part becomes zero। तो हमने कहा कि C की वो वैल्यू जिस पर रेडिकल पार्ट जीरो होता है वो CC है। तो जैसे ही मैं C की वैल्यू CC रखूंगा, तो ये मेरे को इक्वेशन मिल जाएगी। सो आई कैन इक्वेट दीज टू। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि तो अभी हमें ये बताओ, ये CC की वैल्यू क्या हुई, यानी कि CC को आपने क्या रखा जिससे कि रेडिकल पार्ट जीरो हुआ। तो अब अपन इससे निकाल सकते हैं, दोनों साइड में अंडर रूट ले लें अपन, इधर भी रूट ले लो, इधर भी रूट ले लो, तो ये हो गया CC/2m इक्वल टू रूट ऑफ K/m। ठीक है। और अंडर रूट ऑफ K/m जो है, ये क्या चीज है, ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज्ड चीज है। आपका सिस्टम तो ऐसा है, उसमें स्प्रिंग है, डैम्पर है और मास है। और अगर आपको इस सिस्टम के लिए कोई पूछे कि रूट K/m की क्या वैल्यू है या फिर क्या अहमियत है, तो आपको सिर्फ इस तरह से जवाब देना चाहिए कि अगर मैं अपने सिस्टम में से इस डैम्पर को निकाल दूं, तो मेरा सिस्टम एक सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम रह जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं अनडैम्प्ड कंडीशन को इमेजिन कर लूं, कि अगर मेरा सिस्टम में एक्चुअल डैम्पिंग तो सी है, लेकिन अगर मेरे सिस्टम में डैम्पिंग नहीं होती, तो मेरा सिस्टम किस नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता, वो फ्रीक्वेंसी हमेशा अंडर रूट K/m रहेगी। तो चाहे डैम्पर लगा हुआ हो सिस्टम में, चाहे डैम्पर नहीं लगा हुआ हो सिस्टम में, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये डैम्पर भी लगा रखा है हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बोलेंगे कि ओमेगा एन की वैल्यू बताओ क्या है। तो इसका मतलब ओमेगा एन लिखा है, तो इसका मतलब है अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि उसमें डैम्पर लगाओ नहीं लगाओ कोई मतलब नहीं है, आप तो ये बोलो कि भाई स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के है, मास कितना है, एम है, तो ओमेगा एन जो है वो अंडर रूट K/m है इसका। तो कोई आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, अच्छा अगर इसका अंडर रूट K/m है, तो इसका क्या है, अगर मैं सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम लूं, तो आप बोलोगे इसका ही तो बताया है। तो ओमेगा एन होता है अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी डैम्पर लगाओ चाहे नहीं लगाओ सिस्टम में, उस सिस्टम में डैम्पिंग ना हो ऐसा इमेजिन करते हुए उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी, वो है अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो इट इज ऑलवेज अंडर रूट K/m। ठीक है, चाहे डैम्पर लगा हो चाहे नहीं लगा हो, अगेन आई एम टेलिंग। तो आपने ये कहा कि भाई आपका सिस्टम जो था, ठीक है, डैम्पर वैम्पर लगा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंडर रूट K/m तो ओमेगा एन ही हुआ। सो यू से दैट माई CC/2m इज ओमेगा एन। तो इसका मतलब CC की वैल्यू कितनी हो गई, 2m ओमेगा एन। दिस इज वन इक्वेशन which I am boxing up so that you have to remember it all throughout your curriculum। तो अपन ने ये देखा कि CC जो है वो 2m ओमेगा एन के बराबर है। एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा, CC/2m अंडर रूट K/m है। ठीक है, वापस से एक बार रिविजिट करते हैं इस इक्वेशन को, CC/2m इज इक्वल टू अंडर रूट K/m। ठीक है, एक दूसरा एक्सप्रेशन भी होता है, अंडर रूट एम से एक अंडर रूट एम कैंसिल हो गया, तो आपका CC जो है
this becomes 2 root km. This is another expression. ये दोनों expressions एक ही. So remember both the formats, और ये न्यूमेरिकल्स में आपके बहुत काम आता है. तो आपने कहा कि भाई वापस से चलें, ये सीसी वगैरह अपन ने क्या निकाला, एक बार कनेक्ट करें चीजों को. यहां से बात चालू हुई. इस रेडिकल पार्ट को जीरो करने के लिए सी की कौन सी वैल्यू रखी जाए. तो आपने कहा कि एक सी सी करके एक चीज है जिसको हम क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट कहते हैं, जो कि किसी भी सिस्टम के लिए कैसे निकाला जा सकता है. आप उस सिस्टम का के और एम लेके आ जाओ और 2 रूट के एम निकालो. तो भाई आपके सिस्टम में के और एम तो लगा हुआ ही है, वो आपको पता भी है. तो जैसे ही आप ये क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे तो आपको सी सी की वैल्यू न्यूमेरिकली मिल जाएगी. और ये वैल्यू जैसे ही आप यहां पर सी की जगह पे रखोगे, आपका रेडिकल पार्ट गायब हो जाएगा. ठीक है. तो अब अपन बात करते हैं कि इस रेडिकल पार्ट के गायब होने से क्या फर्क पड़ रहा है, रियल वर्ल्ड में क्या फर्क पड़ रहा है. ये तो गणित हो गई. लेट अस गो बैक टू दिस इक्वेशन. अब देखो, अभी अपने एक कांस्टेंट, अपन ने यहां पर क्या बात की थी, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस 2 न्यू कांस्टेंट्स. तो एक कांस्टेंट तो इंट्रोड्यूस कर दिया अपन ने. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस कांस्टेंट ऑलवेज. ये एक सिस्टम का कांस्टेंट है, एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 2 रूट के एम, एंड दिस इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट. आगे चले. अब आपने ये कहा when c is equal to cc, then we say that the system is critically damped. ठीक है. अब एक नया कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं, जीटा इज इक्वल टू सी अपॉन सी सी. अब इसको कहेंगे अपन डैम्पिंग फैक्टर. दिस इज द सेकेंड कांस्टेंट वी आर गोइंग टू डिफाइन. ठीक है. तो ये सी बाई सी सी क्या चीज है, आप कहते हो सी तो मेरे सिस्टम की एक्चुअल डैम्पिंग की वैल्यू है, और सी सी जो है ये मेरे सिस्टम की क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट है. और ये सी सफिक्स सी जो है, सरप्राइजिंगली इस चीज का डैम्पिंग से कोई लेना देना नहीं है. ये ध्यान से सुनना कि सी सफिक्स सी जो है, इसका एक्चुअली सिस्टम की डैम्पिंग से कोई लेना देना नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी वैल्यू किस पे निर्भर कर रही है, सिर्फ स्प्रिंग और मास पे निर्भर कर रही है. इसका डैम्पिंग से कोई लेना देना नहीं है, और ये कांस्टेंट है आपके सिस्टम के लिए. ठीक है. तो डैम्पिंग का लेना देना सिर्फ सी से है. सी सी का डैम्पिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन दोनों की यूनिट सेम है, सी और सी सी की. तो सी अपॉन सी सी कि भाई एक्चुअल डैम्पिंग आपके सिस्टम में कितनी है, सी है. क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट कितना है, सी सी है. तो सी और सी सी का रेशियो ले लो. नाउ वी आर गोइंग टू कॉल इट एज डैम्पिंग फैक्टर. ठीक है. तो अब डैम्पिंग फैक्टर आपने इंट्रोड्यूस कर लिया. डैम्पिंग फैक्टर की कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि सी और सी सी दोनों एक ही यूनिट वाले हैं. इन दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएगी. सो दिस जीटा, इसको क्या कहते हैं, इस सिंबल को देखो, मैं इस सिंबल को अच्छी तरह से बना के दिखाता हूं. जो लिटरेचर में ये ग्रीक अल्फाबेट है जीटा, इसको कैसे बनाते हैं, इट इज कंस्ट्रक्टेड लाइक दिस. ये है जीटा. दिस इज कॉल्ड एज जीटा. लेकिन अपन जब बनाएंगे, खासकर देखो मैं आपको लिख लिख के दिखा रहा हूं. आई आई व्हेन आई राइट इट क्विकली, आई टेंड टू मेक इट लाइक दिस. मेरे नोट्स में भी आपको जीटा इस तरह से मिलेगा. ठीक है. बट दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ जीटा. एनीवे, तो अब आपके पास में डैम्पिंग से रिलेटेड 3 चीजें आ गई. एक तो सिस्टम की डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी, एक सिस्टम की क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी सी, और एक सिस्टम की डैम्पिंग फैक्टर जीटा. ठीक है. सी और सी सी दोनों की यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर. जीटा की कोई यूनिट नहीं है. ठीक है.
और जो दो नए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने की बात की थी वो ये दोनों थे। अब इनका इंट्रोडक्शन हो चुका है आपकी सिस्टम के अंदर। अब अपन वापस जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ भाई अब S1 और S2 को वापस से रीराइट करने जा रहे हैं हम। अब हम इसमें से C M K M इन सब चीजों को गायब कर देंगे और अब मेरे पूरे गेम के अंदर जीटा आ जाएगा या फिर मेरा डैम्पिंग फैक्टर आ जाएगा। कैसे किया? देखो, C/2M को मैं ऐसे लिख सकता हूं, C को CC से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, ये देखो, ठीक है, और 2M नीचे ही रखा। अब C/CC क्या होता है? ये तो होता है जीटा। और CC/2M क्या होता है? ये अभी अभी अपन ने देखा, CC/2M जो है ये √K/M है, ठीक है, और √K/M क्या है? ओमेगा एन है। तो इसको मैं ओमेगा एन लिख सकता हूं। तो कुल मिला के ये C/2M वाली जो टर्म है ये मेरी जीटा इंटू ओमेगा एन बन गई, ठीक है। तो अब यहां पर मेरे S1 और S2 में C/2M जो है, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं जीटा इंटू ओमेगा एन, और इसका होल स्क्वायर्ड है तो इसका होल स्क्वायर्ड हो जाएगा, माइनस K/M जो है, √K/M आपको पता है कि ओमेगा एन होता है। तो K/M कितना हो गया? ये चीज हो गई ओमेगा एन का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट के अंदर वाली पूरी चीज तो ये चीज बन गई, और यहां पर -C/2M है, ये भी जीटा ओमेगा एन बन जाएगी। तो ये सब्सटीट्यूशन करना है आपको। सब्सटीट्यूट K/M एज ओमेगा एन स्क्वायर एंड सब्सटीट्यूट C/2M एज जीटा इंटू ओमेगा एन। और आप S1 और S2 दोनों में ये सब्सटीट्यूशन जब करेंगे, इवेंचुअली यू विल फाइंड दैट योर S1 एंड S2 नाउ बिकम लाइक दिस। अब देखो, इसमें से C चला गया, CC चला गया, K चला गया, M चला गया, सब कुछ चला गया, सिर्फ दो कांस्टेंट्स रह गए आपके, जीटा और ओमेगा एन, ठीक है। अब आपने S1 और S2 निकाल लिया है जीटा के टर्म्स में, ठीक है, विच इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जीटा को कहते हैं डैम्पिंग फैक्टर और सी को कहते हैं डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ये ध्यान रखना, फैक्टर कौन सा है और कोएफिशिएंट कौन सा है। इसको फैक्टर भी कहते हैं और रेशियो भी कहते हैं, क्योंकि ये C/CC है। सो जीटा गोज बाय टू नेम्स, डैम्पिंग रेशियो और डैम्पिंग फैक्टर। कई बार स्टूडेंट्स क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, डैम्पिंग फैक्टर निकालने को कहा है क्वेश्चन में, तो ये याद ही नहीं रहता कि भाई सी निकालने को कह रहे हैं कि जीटा निकालने को कह रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, सी के दो नाम हैं, या तो इसको आप डैम्पिंग कोएफिशिएंट कहोगे या डैम्पिंग कांस्टेंट कहोगे। जीटा को आप या तो डैम्पिंग रेशियो कहोगे या डैम्पिंग फैक्टर कहोगे, ठीक है। अब अपन आते हैं, ये जो क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट और जीटा का क्या मतलब है, ठीक है। अब यहां से आपका डेरिवेशन तीन स्ट्रीम्स में बट जाता है। अब या तो आपकी डैम्पिंग ओवर डैम्पिंग है, या तो आपकी डैम्पिंग क्रिटिकल डैम्पिंग है, या फिर आपकी डैम्पिंग अंडर डैम्पिंग है। सो अंडर, क्रिटिकल एंड ओवर डैम्पिंग। और ये किस बेसिस पे डिवाइड हो रहा है ये, कि आपकी एक्चुअल सी की वैल्यू अगर क्रिटिकल कोएफिशिएंट से ज्यादा है तो इसका मतलब है जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। इस केस में आपका सिस्टम ओवर डैम्प्ड हो जाता है। और अगर आपकी सी की वैल्यू क्रिटिकल कोएफिशिएंट के बराबर है तो आपकी जीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और उस केस में आप कहते हो कि मेरा सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड है। और अगर आपके सिस्टम की डैम्पिंग वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम है तो आप ये कहोगे कि जीटा मेरा 1 से कम है, तो इस केस में मेरा सिस्टम अंडर डैम्प्ड है, ठीक है। तो इस बेसिस पे अपन ने सीसी को बेंचमार्क करते हुए सीसी से कम डैम्पिंग को अंडर डैम्पिंग कह दिया, सीसी के बराबर डैम्पिंग को क्रिटिकल डैम्पिंग कह दिया, और सीसी से ज्यादा डैम्पिंग को ओवर डैम्पिंग कह दिया। अब अपन देखते हैं कि इसका इंडिविजुअल एनालिसिस कैसा आता है। अब यहां से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ अंडर डैम्प्ड सिस्टम्स, दैट मींस जीटा इज लेस देन 1, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं एक काम करने जा रहा हूं, मेरा S1 और S2 ये था, ठीक है।
मुझे साफ पता है कि जीटा की वैल्यू अभी मेरी 1 से कम है। क्यों? बिकॉज आई एम डिस्कसिंग अंडर डैम्ड सिस्टम्स। क्रिटिकल डैम्ड की अलग डिस्कशन होगी, ओवर डैम्ड की अलग डिस्कशन होगी। तो अभी फिलहाल तो मेरा जीटा 1 से कम है। तो ये साफ मुझे पता है कि ये जो अंडर रूट के अंदर जो बैठा है, ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? ये बता दो कोई जना। इफ माई जीटा इज लेस देन 1, कैन आई यस एक्सपेक्ट सर। नेगेटिव वैल्यू इनसाइड द रूट? है ना? और अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो फिर ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है। बनने दो, आएगा तो आएगा, अभी क्या कर सकते हैं। ठीक है? तो इस चीज को पहले से ही मद्देनजर रखते हुए मैंने क्या किया कि भाई जीटा 1 से कम है, पहले ही पता है मुझे। तो माइनस जीटा प्लस अंडर रूट माइनस ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर लिख दिया। ऐसा तो लिख सकता हूं, ये सेम ही है ना, ये देख लो। ठीक है? अब ये माइनस जो है, माइनस का मतलब है -1 मल्टीप्लाइड बाय द ब्रैकेट, और -1 का अंडर रूट क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज आयोटा। ठीक है? तो इस रिप्लेसमेंट को करके मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता है जीटा 1 से कम है, तो इसीलिए मैंने इस S1 और S2 को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लिया। ठीक है? तो ये जो लिखा हुआ S1 है और ये जो लिखा हुआ S1 है वो एक ही है। मैंने सिर्फ यहां पर एक छोटा सा रीअरेंजमेंट करके आयोटा को बाहर ले लिया, इतना सा किया है और कुछ नहीं किया। यहां पर देखो 1 माइनस जीटा स्क्वायर है, यहां पर जीटा स्क्वायर -1 है। दे आर वन एंड द सेम थिंग, प्लीज रिमेंबर। ठीक है? और ओमेगा एन बाकी सब चीजें वही रहेगी, माइनस जीटा वही रहेगा। ठीक है? तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम्स की एनालिसिस के लिए S1 और S2 को मैंने इमेजिनरी नंबर बना लिए। हियर आयोटा इज अंडर रूट ऑफ -1। अब देखो आगे क्या होता है। तो अब मेरा सोल्यूशन क्या था? मेरा जनरल सॉल्यूशन पे वापस चलता हूं। अब देखो, आपने इंट्रोड्यूस करने के लिए, दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने के लिए एक ब्रेक लिया था। अब आप वापस से अपने जनरल सॉल्यूशन पे आ गए। तो अब आप बोल रहे हो कि अगर अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, यानी कि जीटा <<1 है, तो ये सॉल्यूशन कैसा दिखेगा? तो आपने बोला कि भाई S1 और S2 को इमेजिनरी नंबर्स के रूप में बना लो, क्योंकि जीटा <<1 है तो आयोटा आ जाएगा। और S1 और S2 की वैल्यूज को रख दो यहाँ पे। ठीक है साहब? तो आपने बोला S1 मेरा अंडर डैम्प्ड के लिए ये है, S2 मेरा ये है। तो मेरा जो जनरल सॉल्यूशन हो गया C1 e रेस टू पावर S1 t प्लस C2 e रेस टू पावर S2 t। ये लिख दिया अपन ने। ठीक है? अब ये देखो, ये अब आपकी इक्वेशन बहुत लंबी चौड़ी हो गई है। तो इसको थोड़ा सा अब आगे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ले जाने के लिए मैंने क्या किया, ये जो पार्ट है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन इंटू टी, इस पूरे ब्लॉक को एक थीटा से रिप्लेस कर दिया। ये टेम्पोररी रिप्लेसमेंट है। अगर किसी को ये रिप्लेसमेंट नहीं करना है तो बिना इसके भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पेपर पूरे लंबे लंबे इक्वेशन से भरे हुए रहेंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। सो इट्स बेटर टू गो फॉर अ शॉर्टकट, इंटरमीडिएट शॉर्टकट। बाद में अपन इसको वापस से एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है? तो अभी फिलहाल मैं बार बार इतना लंबा नहीं लिखना चाहता, इसीलिए मैंने थीटा ले लिया। तो अब देखो, ये पूरी चीज थीटा हो गई मेरी। कौन सी चीज? ओमेगा एन टी इंटू ये। ठीक है? और अब आप देखना, मैंने ये देखो क्या किया है, ई रेस टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी को कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है? इसको कॉमन बाहर ले लिया, और ये जो टर्म है इसको थीटा डिक्लेयर करते हुए ये बन गया ई रेस टू पावर आयोटा थीटा। और यहाँ C2 के बाद यहाँ रह गया C2 इंटू ई रेस टू पावर माइनस आयोटा थीटा। अब जैसे ही मैं ऐसा फॉर्मेट देखता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो फटाक से मेरे को ऑयलर्स इक्वेशन याद आई। e raised to power iota theta can always be written as cos theta plus iota sin theta. E raised to power minus iota theta can be always written as cos theta minus iota sin theta. These are Euler's equations. तो अब Euler's equation से इसको रिप्लेस कर दिया। इसकी जगह पर ये लिखूंगा और इसकी जगह पर ये लिखूंगा। तो ये रिप्लेसमेंट मैंने यहां पर किया। अब मेरा सॉल्यूशन बन गया ये। ठीक है? अब और फर्दर रीअरेंजमेंट करते जा रहा हूं। C1 cos थीटा प्लस C2 cos थीटा, इसमें से cos थीटा को कॉमन ले लिया तो C1 प्लस C2 हो गया। C1 आयोटा साइन थीटा
माइनस C2 आयोटा साइन थीटा, इनमें से साइन थीटा को कॉमन ले लिया तो आयोटा C1 माइनस C2 हो गया। अब फिर मैंने कहा कि एक काम करते हैं, C1 प्लस C2 एक कांस्टेंट ही है, C1 माइनस C2 भी एक कांस्टेंट है, आयोटा भी कांस्टेंट है। भाई इमेजिनरी हुआ तो क्या हुआ, है तो कांस्टेंट। तो आयोटा C1 माइनस C2 को पूरा एक कांस्टेंट ले लेता हूं B, C1 प्लस C2 को एक कांस्टेंट ले लेता हूं A। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया तो इन इस रिप्लेसमेंट के बाद में अब मेरा सॉल्यूशन ऐसा दिखता है। मैं यही बता दूं कि भाई इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन अपन क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना काम तो यही हो गया। लेट मी टेल यू द ट्रूथ, द स्टोरी एंड्स हियर। आपको सॉल्यूशन चाहिए था ना, जनरल सॉल्यूशन फॉर द मोशन ऑफ मास विथ डैम्पिंग एंड स्प्रिंग। तो हो गया ये, इसमें टाइम डाल दो, देखो यहाँ पे टी की वैल्यू डाल दो, ये सब पता है आपको, जीटा पता है, आयोटा पता है, ओमेगा एन पता है, जीटा ओमेगा एन सब कुछ पता है। क्या चीज नहीं पता, C1 और C2 नहीं पता। और ये दोनों वैल्यूज आपको इनिशियल कंडीशन ऑफ सिस्टम डाल के कभी भी मिल जाएगी। तो अपना काम तो यही खत्म हो गया। लेकिन मुद्दा अपना क्लियर नहीं हुआ, अपन को क्या चाहिए था, अपन को वो फ्रीक्वेंसी चाहिए थी जिस पर कि आपका सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है एक्चुअली, और वो ओमेगा एन नहीं है। ओमेगा एन क्या है, ओमेगा एन तो इसकी फ्रीक्वेंसी तब होती जब उसमें से आप डैम्पर हटाते। तो अब डैम्पर लगा करके क्या फ्रीक्वेंसी है वो कहीं दिख रही है क्या इसमें आपको? कुछ आइडिया नहीं है, जीटा फीटा पता नहीं क्या क्या, आयोटा भी बैठा हुआ है। देर इज एब्सोल्युटली नो आइडिया ऑफ व्हाट द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज। और इस इक्वेशन को देख करके कहीं ये पता लग रहा है कि आपका जो सिस्टम है वो धीरे 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 एम्पलीट्यूड लूज करेगा। तो वो कैसे लूज कर रहा है एम्पलीट्यूड, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए ये सारे काम धंधे कर रहे हैं अपन कि भाई इस इक्वेशन को एक ऐसे फॉर्मेट में लाया जाए जिसको देख के कुछ सर पैर तो समझ में आए। दैट इज ऑल दैट वी आर डूइंग। तो अब जो आगे अपन कर रहे हैं इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या कन्वर्जन कर रहे हैं टू अ मोर यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट। दिस सॉल्यूशन इज कंप्लीट बट इट इज नॉट यूजर फ्रेंडली। ये कोई नहीं समझ सकता क्या चीज है, ये बकवास है, ये इक्वेशन सही है लेकिन बिल्कुल उलझुल है, अपने सर के ऊपर से बाउंसर जा रहा है। तो अब ये बाउंसर को खत्म कर रहे हैं अपन, बस इतना सा काम कर रहे हैं, सॉल्यूशन तो हो चुका है आपका। सो वी आर सिंपली ट्रीटिंग इट मैथमेटिकली टू ब्रिंग दिस इक्वेशन इनटू अ मोर यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट विच वी कैन अंडरस्टैंड। अब देखो धीरे धीरे ये आपके सिंप्लीफाई होते होते देखो अब एक कॉस और साइन के टर्म्स में आ गया। कॉस और साइन अपन को समझ में आती है, ठीक है। अब आप ये जो नोट है इसको आप अलग से पढ़ना, ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। दिस इज फॉर यू टू रीड एंड अंडरस्टैंड, और आपको नहीं समझ में आए तो डू गिव मी अ कॉल, ठीक है। बट आप इस नोट को ऑल टुगेदर इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, आपको अपने डेरिवेशन में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज फॉर एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। डेरिवेशन अपना यहां से कंटिन्यू होगा। मैंने इस इक्वेशन को स्टार मार्क कर दिया, बोला कि ठीक है भाई, ये जो इक्वेशन थी ये वाली, कुल मिला के बात ये है कि मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं। ऐसा लिख के क्या फायदा हुआ? अब देखो, अब यहाँ पे फर्दर ट्रीटमेंट है, अभी भी यहाँ पे रुक नहीं रहे अपन, ये भी अभी 100% क्लियर नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, इसमें कॉस और साइन दो दो चीजें बैठी है, कोई एक चीज लेके आओ, या तो सिर्फ इसमें कॉस बैठा हो या सिर्फ साइन बैठा हो, तब फिर और थोड़ा क्लियर हो जाएगा पिक्चर। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए भी एक ट्रिक है। इस ए को रिप्लेस कर दो ए साइन फाई से, और इस बी को रिप्लेस कर दो ए कॉस फाई से। ऑब्वियसली अब आपके दिमाग में बात चल रही है, यार अब ये क्या मतलब हो गया, मतलब कुछ भी। तो मतलब ए साइन फाई की जगह में ए टेन फाई भी ले सकता था क्या? लेने को ले सकते थे, लेकिन ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है। और ये ट्रिक इस बात पे आधारित है कि आपसे मैं कोई भी दो नंबर मांगू, जैसे कि किसी भी एक स्टूडेंट से बोलूं कि अपनी मर्जी का एक नंबर दे दो, कोई मतलब राउंड फिगर होना भी जरूरी नहीं है, जो मन में आया। जैसे किसी ने बोला सर 1.121, ये मेरे मन में आया,
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो लेट अस से दैट a इज इक्वल टू दिस। अब दूसरे बच्चे से पूछा, बताओ एक दूसरा नंबर बताओ जो मन में आए, ठीक है। तो उस बच्चे ने बोला कि सर b इज इक्वल टू लेट अस से 32.99। बस मर्जी से बोल दिया दो नंबर, ठीक है। तो मेरा ये क्लेम है, you can always take any two random numbers and you can always put them equal to a sin phi, a cos phi. Always, you can always put them equal to such expressions. क्यों? अब मैं a और b को यूज करके ये कैपिटल A और ये फाई निकाल सकता हूं। इन दोनों को स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, a मिल जाएगा, ठीक है। a और b को डिवाइड कर दो और tan का इनवर्स ले लो, फाई मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि इस दुनिया में कोई से भी रैंडम दो नंबर उठा लो, उनको हमेशा ए साइन फाई ए कॉस फाई के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। दिस इज अ सिंपल मैथमेटिकल ट्रूथ। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई क्योंकि ये मैथमेटिकल ट्रिक मेरे पास मौजूद है, तो मैं क्यों ना यूज करूं। ए साइन फाई ए कॉस फाई, अब देखो यहां पर अपन रिप्लेस कर रहे हैं। स्मॉल ए को मैं लिख रहा हूं ए साइन फाई, और इस स्मॉल बी को लिख रहा हूं ए कॉस फाई, ठीक है। अब देखो आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। कैसे बन गई? ए को मैं कॉमन ले लूंगा, यहां बाहर निकाल लेता हूं। तो अब ब्रैकेट के अंदर बैठा है साइन फाई कॉस थीटा प्लस कॉस फाई साइन थीटा। ये किसका इक्वेशन है, कोई बता सकता है मुझे? साइन फाई कॉस थीटा प्लस कॉस फाई साइन थीटा, व्हाट इज दिस? Sine of a plus b. देखो साइन फाई कॉस थीटा प्लस cos phi sin theta. This is simply the equation of Sir, sin sin A plus B. theta plus phi. सही है ना? यही है ना इसकी इक्वेशन? Yes, sir. तो फिर ये रिप्लेसमेंट हो गया मेरा। अब मेरी इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गई। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इतना सारा तिगड़म करके आपने अपनी इक्वेशन को तोड़ मरोड़ के फाइनली ये जो हासिल किया है, तो इसमें क्या तीर मारा हमने? नाउ फाइनली वी कैन कंपेयर इट विथ समथिंग दैट वी नो, ठीक है। अब देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर y होता तो कैसा होता? तो मैं कहता कि y इज इक्वल टू सम एम्पलीट्यूड इंटू साइन ओमेगा n इंटू टी प्लस सम फेस एंगल। अब ये फेस एंगल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली मैं अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐसा लिखूंगा। अब ये कंपेयर करके देखो, अब सारी कहानी आपको अब यहां क्लियर होगी कि इतना ज्यादा इसको क्यों तोड़ा मरोड़ा गया। ओरिजिनली ये इक्वेशन ऐसी थी, इससे संतुष्टि मिल जानी चाहिए थी, लेकिन हमें नहीं मिली। हम चाहते थे कि कुछ रिकॉग्नाइजेबल फॉर्मेट तो आए। इससे हम सर पैर नहीं निकाल सकते, इससे अपन फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते, इससे एम्पलीट्यूड इसमें कहीं दिख नहीं रहा। तो आपने बोला कि चलो ये सारी गणित लगा करके फाइनली ये इक्वेशन अब ऐसी बन गई। अब देखो, जहां एम्पलीट्यूड बैठा होना चाहिए वहां पर ये पूरी क्वांटिटी बैठी है। सो दिस होल थिंग दैट इज a इंटू ई रेस टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी in a way represents the amplitude of your motion of the mass. साइन बैठा है, साइन बैठा है, बहुत अच्छी बात है, वी रिकॉग्नाइज दिस। टी से फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होती है। तो अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन अनडैम्प्ड मोशन के लिए होता तो ओमेगा एन आपकी फ्रीक्वेंसी होती, लेकिन ये डैम्प्ड है। तो इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो अब यहां से मिल जाएगी कि टी से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है टोटली। दिस होल थिंग इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ टी। तो इसका मतलब है कि डैम्प्ड कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ओमेगा एन इंटू अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर होगी। दिस इज वॉट वी वर लुकिंग फॉर। यही हम खोज रहे थे कि डैम्पिंग के साथ में फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, इतनी आएगी। बिना डैम्पिंग के कितनी आएगी, इसको छुपा दो, जीटा को जीरो कर दो, ओमेगा एन आएगी। अब क्लियर हो गई बात?
तो विद डैम्पिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको ओमेगा सफिक्स डी से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड ओमेगा डी इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। और ओमेगा एन को क्या कहोगे? ओमेगा एन विल बी कॉल्ड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। तो अब आपके पास में एक नई फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आ गई। विस्कस डैम्पिंग के लिए डैम्पिंग के साथ में वाइब्रेशन अगर हो तो क्या फ्रीक्वेंसी निकलेगी? इतनी निकलेगी। यानी डैम्पिंग फैक्टर बता दो और अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी बता दो, ये चीज निकाल लो, तो आपकी डैम्पिंग के साथ की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और ऑब्वियसली ओमेगा एन टी के बाद में यहां पर फाई तो है, फाई या एल्फा जो भी है, आपका जनरल फेस एंगल यहां पर बैठा होना चाहिए, तो यहां पर आपका एक फेस एंगल भी बैठा है। तो ये चीज समझ में आ गई कि आपका सिस्टम जो है वो साइनोसॉइडली चल रहा है, क्योंकि साइन दिख रहा है, इस फ्रीक्वेंसी से चल रहा है। ठीक है, अब इस एम्पलीट्यूड को समझ लें, ये क्या चीज है। ग्राफिकली आपका ये जो फंक्शन है, ये जो पूरा फंक्शन है, इसको अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करूं, y वर्सेस टाइम t, ठीक है, क्योंकि देखो y और t ही इसमें वेरिएबल हैं, बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं। देख लो आप, फाई कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, सब कुछ। तो ये ऐसा आता ही है, एक एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हुआ, फिर एम्पलीट्यूड हर साइकिल में कम होता चला जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड कितना होगा? दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस लोगे तो 2 पाई अपॉन ओमेगा डी होगा, और ओमेगा डी क्या है? ये है। और आप अगर इन सारे पीक्स को कनेक्ट करते हुए एक स्मूथ कर्व बनाएं, तो ये कर्व जो है ऐसे ही एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व आएगा। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर्व और एक्सपोनेंशियल डीके कर्व, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डैम्प्ड सिस्टम्स। ठीक है, और ये जो चीज है ये आपकी एक्सपोनेंशियल डीकेइंग कर्व को रिप्रेजेंट करता है, जो एम्पलीट्यूड था आपका। तो यहां पर ये जो क्वांटिटी बैठी थी एम्पलीट्यूड के टर्म्स में, आपको ये बताता है कि ये एक्सपोनेंशियली नेगेटिव है, यानी कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता हुआ एम्पलीट्यूड दर्शाता है ये। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन दैट वी वर लुकिंग फॉर। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। लेकिन अब यहां पर आपको कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको ए और फाई की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। ये अभी भी अननोन है, बाकी चीजें क्लियर हो गई, अपन को फ्रीक्वेंसी मिल गई, वी आर वेरी हैप्पी। हमें एम्पलीट्यूड का पता लग गया, वी आर अगेन वेरी हैप्पी। हमें कर्व कैसा है ये पता लग गया, साइनोसॉइडल आ गया। ठीक है, लेकिन अब आपको पर्टिकुलर केस के लिए कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको ए और फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाउ डू यू डू दैट? बाय अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशंस। अब इसमें इनिशियल कंडीशंस कैसे लगाते हैं, ये मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि ये सिंपल डिफरेंशियल कैलकुलस है, और आप सिर्फ इसको रीड करें, इससे हर किसी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैंने पूरा का पूरा ट्रीटमेंट एक भी स्टेप बिना मिस किए पूरा एक्सप्लेन किया है। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू गो थ्रू दिस एंड इवेंचुअली अराइव एट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन तक इसको आज स्टडी करें और देखें कि ए की वैल्यू आपके निकल के आई है y0/1 - जीटा स्क्वायर कैसे, और फाई की वैल्यू आपके निकल के आई है √1 - जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा, ये कैसे निकाला। इतना सा पार्ट आप लोग खुद पढ़ें, और एक बार ये समझ में आ जाए, देन क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम्स का जो एनालिसिस है, और फिर उसके बाद ओवर डैम्प्ड सिस्टम्स का जो एनालिसिस है, दिस इज अगेन समथिंग दैट आई लीव फॉर सेल्फ स्टडी। अपने पास इतना ही टाइम है, मैंने आपको सारी मैथमेटिक्स और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब बाकी का ये जो पूरा पार्ट है ये आपको सेल्फ स्टडी करना है। और प्लीज माइंड इट, मैं आपसे डेरिवेशन में ओवर डैम्प्ड पूछ सकता हूं, क्रिटिकली डैम्प्ड पूछ सकता हूं, अंडर डैम्प्ड पूछ सकता हूं। आई कैन आस्क यू एनीथिंग, because now you know how the mathematics is carried out, so you should be able to read it, remember it and reproduce it in your exams. ठीक है, और कल के क्लास में अपन लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपका होमवर्क ये है कि आप लोग यहां तक पढ़ें,
8th पेज में लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट से पहले तक का टॉपिक सेल्फ स्टडी के लिए दिया है। अंडर डैम्पिंग मैंने समझा दी है, ठीक है। ये ग्राफिकल कंपैरिजन एक बार कल डिस्कस कर लेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, एंड देन वी विल कैरी आउट विद द न्यू टॉपिक लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। So please stay with me. I will take your attendance now.